Hello students, today will we discuss about revenge tragedies। आज हम रिवेंज ट्रेजिडी के बारे में बात करेंगे। ओके, ए रिवेंज ट्रेजिडी इज अ ट्रेजिडी एंड एज इट्स नेम implies in which tragedy is brought about by the pursuit and accomplishment of revenge. It is blood asking for blood. The revenge tragedy was very popular during the Elizabethan and Jacobean periods, and it owed its popularity mainly to the influence of Seneca, the ancient Roman dramatist. The reason why the revenge theme came to have some dramatist importance in writing drama was that this theme offered much scope for the display of passion, for rhetorical speech, and for violent action. In the early days of secular theatre, such elements naturally had a more immediate appeal than, say, the actions of characters in comparative static situations, or at a lower emotional pitch. The theme of revenge stirred to a much emotional excitement than ordinary themes could have done. Revenge is a theme needed exciting plots, and such plots were in the traditions of revenge play or tragedy. देखिए, जो रिवेंज प्ले ट्रेजिडी होती है ये बदले में की गई हत्या पर आधारित होती है। एक तरीके का रिवेंज होता है, जैसा कि इस नाम में निहित है कि वह एक नाटक होता है। इसमें बदले में किसी की हत्या की जाती है। इस प्रकार नाटक का जो है अंत दुखांत होता है। ये खून का बदला खून होता है। रिवेंज ट्रेजिडी एलिजाबेथन एंड जेकोबियन एज में बहुत लोकप्रिय थी। इसने अपनी लोकप्रियता मुख्य रूप से सिनेका के प्रभाव से प्राप्त की थी, जो कि एक रोमन नाटककार था। नाटक में बदले का विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया, इसका मुख्य कारण है इस प्रकार के नाटक में तीव्र भावनाओं को दिखाने की अधिक गुंजाइश होती है। साथ ही साथ इसमें अलंकारिक भाषणों तथा हिंसा को दर्शाने की अधिक संभावना होती है। धर्मनिरपेक्ष थिएटर के आरंभिक दिनों में इन तत्वों का स्वाभाविक रूप से अधिक आकर्षण था, जबकि स्थिर स्थिति धीमी भावना वाले नाटक में इतना आकर्षण नहीं होता था। बदले की भावना का विषय साधारण विषय वाले नाटकों की तुलना में अधिक भावात्मक उत्तेजना भड़काता था। रिवेंज एक ऐसा विषय है जिसमें उत्तेजित प्लॉट्स की आवश्यकता होती है, और ऐसे प्लॉट रिवेंज ट्रेजिडी की परंपरा में थे। रिवेंज ट्रेजिडी इज स्पेशली एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ सिनेका, an ancient Roman dramatist. All the 10 tragedies written by him deal with incidents taken from Greek mythology, but instead of exercise the restraint of classical Greek tragedy, Seneca produced the tragic effect by horrifying incidents, bloody actions, and rending speech. One of the plays has the title Hercules' Funeral, which means and the title itself is sufficiently indicative of the thematic treatment. Thomas Kit's Spanish tragedy was the first revenge play in the language, and following it there was a spurt of revenge plays. देखिए, रिवेंज ट्रेजिडी विशेष रूप से सिनेका के नाम से जुड़ी हुई एक रोमन नाटककार था। उसके द्वारा लिखी गई 10 दुखान नाटकों के विषय घटना आदि ग्रीक मैथोडोलॉजी से ली गई थी, परंतु प्राचीन ग्रीक ट्रेजिडी के नियम प्रतिबंधों को लागू करने की बजाय सिनेका ने घटनाओं, रक्तरंजित एक्शन और भावनाओं के द्वारा दुखांत प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास किया। उसके एक नाटक का शीर्षक है हरकुलस फ्यूनरल, जिसका अर्थ है हरक्यूलस क्रोध में। इस शीर्षक स्वयं पर्याप्त रूप में व्यवहार का संकेतक है। थॉमस किट द्वारा लिखी गई स्पेनिश ट्रेजिडी अंग्रेजी भावना की प्रथम रिवेंज ट्रेजिडी है, और उसके बाद रिवेंज प्ले की लहर आ गई थी। ओके, अब हम इसकी पढ़ेंगे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवेंज ट्रेजिडीज आर
In the revenge tragedy, somebody is murdered and the ghost of the murdered person appear before some of his close friends or relatives and disclose. Revenge conceived of as a scared duty and not a kind of wild justice. The person who is not to arrange the murder is moved by the sense of scared duty and not out of any passion such as greed, hatred, and rivalry. Next, there takes place several murders that create horror in the play. Thus, there is much that is sensational and melodramatic. देखिए इसकी जो है, इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता है, इसमें किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है और जिस व्यक्ति की हत्या की जाती है उसका जो भूत होता है वो अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के समक्ष प्रकट होता है और उसको बताता है कि उसकी हत्या किसने की है और वो बदला लेने की कहता है। इसमें जो है बदला लेने को एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है, इसे कोई जंगली न्याय नहीं समझा जाता है। इसमें बहुत सी निरंकुश हत्याएँ होती हैं, इसमें बहुत सी ऐसी हत्याएँ होती हैं और मंच जो स्टेज पर लाश से बिखरी हुई दिखाई जाती हैं। इसमें हिंसा तथा आतंक का बहुत अधिक प्रयोग होता है। मुख्य भूमिका जो कि एक नौकर को दी जाती है जो कि मेलकंटेंट मैकिवलेन खलनायक कहलाता है। बदला लेने के प्रति सहानुभूति उत्पन्न की जाती है। ओके, नेक्स्ट है सिनेकास इन्फ्लुएंस ऑन द एलिजाबेथन रिवेंज ट्रेजेडी। The credit of popularizing the revenge tragedy in England must go to Thomas Kidd, one of the university wits. The tragedies of the Roman dramatist Seneca were his favorite reading and the chief characteristics reappeared in his masterpiece. The immense popularity of Spanish tragedy is accounted for by the fact that the people wanted romantic melodrama and Kidd gave them what they wanted. It is the first effective tragedy in the Senecan style. The atmosphere is one of the terror and gloom, and the terror is produced by the piling up of crime, often monstrous crime. देखिए जो रिवेंज ट्रेजेडी को इंग्लैंड में लोकप्रिय बनाने का श्रेय थॉमस किड को जाता है। यूनिवर्सिटी विट्स में से जो कि एक थे सिनेका के दो खंड नाटक पढ़ने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने सर्वोत्तम नाटक सिनेका के दो खंड नाटकों की विशेषताएं बताई जाती हैं। किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी की ज़बरदस्ती लोकप्रियता का कारण है कि लोग रोमांटिक मेलोड्रामा पसंद करते थे तथा किड ने उनको वही दिया जो वो चाहते थे। सिनेकन शैली में प्रथम वास्तविक प्रभावशाली ट्रेजेडी थी। उसका वातावरण आतंक एवं निराशा का है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बेवस्टर्स टू ट्रेजेडीज, द डचेस ऑफ माल्फी एंड वाइट डिकॉयल। Webster's two tragedies recall are related members of the school of revenge play, and stand out the prominent landmarks in the history of Jacobean tragedy. Both these plays are Italian in tone and temper and were considerably influenced by the revenge traditions which had been popularized in England by Kidd and later on by Marston. These two plays of Webster's bear a close similarity to the plays of Turner, particularly in the use of horrid scenes and shudder producing instruments. Both in Turner and Webster we have the presence of new sensation and horror devices. जो जॉन वेबस्टर की जेकोबियन युग में सबसे महत्वपूर्ण ट्रेजेडी लेखक हैं। वेबस्टर के दो दुखंड नाटक द चेस ऑफ माल्फी वाइट टेबल प्रतिशोध नाटकों के स्कूल के बाद में बने सदस्य हैं। जेकोबियन ट्रेजेडी के इतिहास में सीमा चिन्ह का स्थान रखते हैं। दोनों ही नाटक ध्वनि एवं स्वभाव में इटालियन हैं। वेबस्टर जो हैं वो ये दोनों ही नाटक ध्वनि या स्वभाव में इटालियन है तथा प्रतिशोध की उस परंपरा से बहुत अधिक प्रभावित हैं जिससे इंग्लैंड में प्रथम किड तथा बाद में मार्स्टन ने लोकप्रिय बनाया। वेबस्टर के इन दोनों नाटकों टर्नर के नाटकों के मध्य काफ़ी समानता है, विशेषकर भयानक दृश्यों कपकपी लाने वाले उपकरणों के प्रयोग के लिए हाथ से वेबस्टर टर्नर दोनों में ही
सिनेशियन संत्रांशालों की उपस्थिति देखने को मिलती है, परंतु व्यवस्था टर्नियर से बहुत अधिक है, भिन्न है। इसमें नैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित है। रिवनर कहता है व्यवस्था के नाटक जैकोबीन काल के अनिश्चित एवं अव्यवस्थित संशयवाद नैतिक व्यवस्था का वेदनापूर्ण खोज है ये। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा स्पेनिश ट्रेजेडी। द स्पेनिश ट्रेजेडी जो है इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इट गिव राइज टू द वर्क ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी, a kind of tragedy which enjoyed immense popularity throughout the Elizabethan era. Another great writer of the revenge tragedy is John Marston. His plays opened new visions for succeeding dramatists. His plays reveal the employment of those devices which were unused with greater artistry by Webster, Turner, Middleton and Ford. देखिए, जो स्पेनिश ट्रेजेडी जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो छाया है शेक्सपियर के नाटक हैमलेट पर दिखाई देती है। हैमलेट में हम प्रथम बार कई बार झिझकने वाला हीरो देखते हैं। इसकी दुखद निराशा शेक्सपियर ट्रेजेडी की निराशा है। बहरहाल किड के नाटकों में शेक्सपियर का एक दृश्य तथा पोइट्री नहीं है। स्पेनिश ट्रेजेडी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसने रिवेंज ट्रेजेडी को बढ़ावा दिया जो कि संपूर्ण एलिजाबेथन युग में बहुत लोकप्रिय थी। रिवेंज ट्रेजेडी एक अन्य महान लेखक जॉन मार्स्टन है। इनका नाटक माने नाटककारों के लिए विजियंस दृश्य खोल दिए तो उसने अपने नाटकों में सभी विधियां अपनाई हैं जो बाद में बड़ी कलात्मक तरीके से वेबस्टर ने, टर्नर में, मिडल्टन एवं फोर्ड ने अपनाई थी। उसने अनुयायियों को सिखाया कि किस नाटक की खूनी विध्वंस के साथ अंतिम दृश्य में मुखौटों के साथ कैसे उसको समाप्त किया जाता है। ये एक ड्रामेटिक आयरोनी में बहुत ज़्यादा निपुण था और उसने किड की स्थापित की गई रिवेंज ट्रेजेडी को भी आगे